हेलो एवरीवन, वेलकम टू डॉक्टर हब टॉक्स। आज हमारे स्टूडियो में है डॉक्टर श्रीनाथ व्यास सर। ही इज अ हेड फिजियोथेरापिस्ट एट वेस्ट लियोन्स यूनाइटेड स्पोर्ट्स एकेडमी, विच इज अ फुटबॉल क्लब। ही इज ऑल्सो अ हेल्थ केयर एंटरप्रेन्योर जो अपना खुद का क्लिनिक स्पोर्ट्स फिजियोथेरापी एज वेल एज मल्टी स्पेशलिटी फिजियोथेरापी सेंटर स्विफ्ट हेल्थ सॉल्यूशंस अहमदाबाद में चलाते हैं। तो आज हम उनसे बात करेंगे फिजियोथेरापी करियर के बारे में, डिफरेंट स्पेशलिटी प्रैक्टिसेस इन फिजियोथेरापी, क्या है उनका एक्सपीरियंसेस, और बीपीटी एज वेल एज एमपीटी स्टूडेंट्स उनके लिए करियर और प्रैक्टिस अपॉर्चुनिटीज क्या है। लेट्स डिस्कस। Thank you, वेलकम sir. सर। Thank you, sir, for having me over here. It's a wonderful opportunity, and you are doing a great work at DocHub. I appreciate your commendable you. work in this state of our community, the healthcare community. Thank you. Thank Yeah. you. So, Dr. Srinath, sir, what's your journey? Yes. How? So after completing my 12th standard, I opted out for Bachelor's of Physiotherapy from AIMS College in Ahmedabad. Okay, so that Yes. is what is the full name? Ahmedabad Institute of Medical Sciences, which Okay. is situated near Gotha area of Yeah, Ahmedabad. okay, Yes. okay. So I did my 4 years of bachelor's from that college, and then I did my internship from VS Hospital, Okay. SBP College of Physiotherapy, and I did my master's in sports physiotherapy from the same VS Hospital and SBP College of Okay. Physiotherapy. Great. So MPT sports physiotherapy. Yeah. इतना कॉमनली स्पेशलिटी सुनने में नहीं आता है। मतलब वी सी देर आर ऑर्थोपेडिक फिजियोथेरापिस्ट, देर आर पीडियाट्रिक फिजियोथेरापिस्ट, देर आर रेस्पिरेटरी फिजियोथेरापिस्ट। स्पोर्ट्स फिजियोथेरापी ही क्यों? Sir, see, it's a trending field, Okay. and now it is much in trend rather than it was years before. And when I was a child, I got fascinated by, when a physio went to the ground and treated the player, Okay. where it can be cricket or football. That thing fascinated me. Okay. So I just thought that let's give it a shot. And somehow I like to watch sports and I like to treat sports injuries. Since my internship, what I found that I have some passion for the sports injuries, because in our internship many cases were of sports injuries, and that's how I settled my mind. So let's do masters in sports physiotherapy, and luckily I got the admission for the same. गुड। और तो आप स्पोर्ट्स फिजियोथेरापी मतलब ओवरऑल स्पोर्ट्स इंडस्ट्री, कोई भी स्पोर्ट्स है दैट इंक्लूड योर स्पेशलिटी, मतलब आपके लिए वहां पे अपॉर्चुनिटी है, तो क्या आप सजेस्ट करना चाहते हो या आप उस फील्ड को किस तरह से देखते हो? क्योंकि बहुत सारे फिजियोथेरापी स्टूडेंट्स, बीपीटी है, एमपीटी है, वो अगर ये पॉडकास्ट देख रहे हैं तो उनके लिए क्या आप अपने एक्सपीरियंसेस से एक स्पोर्ट्स फिजियोथेरापी एज ए अपॉर्चुनिटी इन इंडिया ओवरऑल, और उसमें अगर किसी को इंटरेस्ट है तो क्या जरूरत होगी, मतलब स्टेप 1 2 3 हाउ ही कैन प्लान? Yes, see. So let's first talk about the journey. So I completed my master's. Then I was working as a professor at the same AIMS college where I did my bachelor's. Okay. And then I worked at the Government Football Academy, Sports Authority of Gujarat, the Football Academy. At that place, I worked as the sports physio. And then I got selected and I worked with the Gujarat State Football Association with the Gujarat Senior Men's Football team. And I work with 3 nationals with that particular team. Okay, so as a sports physiotherapist, you are working in a sports authority of Gujarat, or any state authorities, maybe a football, maybe a hockey, or any sports related department. What exactly your work? I mean, how is your day schedule? कैसे होगा वो? So when you work with a residential academy, see, in sports there are 2 types. First is a private sports academy, and there comes the residential sports academy. In private, the children come over there, and they just play, and their parents take them back home. Yes. Whereas in the residential academy, they stay there. Okay. There is a hostel. Okay. There is such kind of a system. So डे ऐसा रहता था
कि मॉर्निंग में क्या होता था कि देयर वाज अ सी स्पोर्ट्स में देयर आर टू प्रैक्टिस सेशंस, वन मॉर्निंग एंड अर्ली इवनिंग। ओके। सो मॉर्निंग का प्रैक्टिस सेशन रहता है, तो उसमें कैसा होता है कि फॉर एग्जांपल लेट्स से कि मंडे टू फ्राइडे आई वर्कड इन फुटबॉल। सो मंडे टू फ्राइडे तो दिन के 2 सेशन मिलाकर देयर आर 10 सेशंस, राइट? सो उसमें से बीइंग अ फिजियो, सी देयर इज अ टीम वर्क इन स्पोर्ट्स, देयर इज अ कोच, असिस्टेंट कोच, physio, assistant physio, manager, masseur, SNC coach, dietitian, nutritionist, Okay. video analyst, etc. So we need to work as a team. So there are, I mean, apart from Physio. sports person, Yeah. there are, you said, I mean, 10 to 12 minimum. Yes. There is a team behind the team. Which is working Yeah. to manage sports Yeah. people and, Yeah. and the entire. Yeah. to And also the run team show, manager. Yeah. actually. Yeah. Yes. Okay. So क्या होता है कि we decide the load. So athletes में I work with the elite athletes. So उसमें we need to divide the load, क्योंकि ज्यादा लोड होगा उनके बॉडी पे तो they will end up in injuries. Yeah. And injuries are of two types. First is the acute injuries जो at the moment हुई है, दूसरी होती है overuse injuries that develops with time. और overuse में अगर आप क्या करते हो कि लोड ज्यादा देते हो तो overuse injury उसको होती है। So आप उसको मॉनिटर करते हैं, Yes. या वो जिस तरह से जो भी वर्कआउट करते हैं या प्रैक्टिस कर Yes. रहे हैं उनको मॉनिटर करना, उनको एडवाइज करना, या बेसिकली यू एडवाइज देम डूज एंड डोंट्स काइंड ऑफ थिंग। सो बेसिकली मैंने बोला कि मंडे टू हाँ। फ्राइडे फॉर एग्जांपल है तो उसमें दिन के 2 सेशन हुए, तो उसमें से 6 या 7 सेशन कोच के होंगे वेयर ही वुड फोकस ऑन द टेक्निकल पार्ट, ही वुड ट्रेनिंग कराएगा ऐसा कुछ। बाकी 3 या 4 सेशन ही विल गिव टू यू एज अ फिजियो और एसएनसी कोच कि आप इंजरी प्रिवेंशन के सेशन लो, उसमें आप स्ट्रेचिंग, मोबिलिटी, ये सब पे आप फोकस कर सकते हो, उनके एंड्योरेंस पे, जो भी छोटे छोटे कंपोनेंट्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है उनके लिए। सो इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। तो हमारा रोल ये है कि जब मॉर्निंग या इवनिंग सेशन हो तो आपका सेशन हो तो आपको लेना है, और कोच का सेशन हो तो यू नीड टू बी प्रेजेंट ओवर देयर कि अगर किसी को कोई अक्यूट इंजरी हो खेलते खेलते या ट्रेनिंग में, यू कैन मैनेज दैट थिंग एट द पर्टिकुलर मोमेंट। ओके। एंड बाकी अपार्ट फ्रॉम द मॉर्निंग एंड इवनिंग सेशन यू आर डेजिग्नेटेड अ टाइम इन बिटवीन, जहाँ पे आपको एक रूम अलॉट करते हैं एकेडमी में। वहां पे सपोज 2 से 4 आपने टाइम रखा है, तो उसमें प्लेयर आता है, आप उसको असेस करते हो कि क्या इंजरी है, यू हैव मशीन्स, इलेक्ट्रोथेरापी एंड एवरीथिंग, एसएनसी का भी रहता है। तो यू कैन डिजाइन अ प्रोटोकॉल, इसको ये इंजरी है और अब मैंने इसको ये कराया, और जब वो ट्रीटमेंट कर रहा है तब आपको ट्रेनिंग के लिए अलाउ नहीं कर सकते हो। फिर इंजरी है, आपने ट्रीट किया, आपने कोच को लेटर लिखा कि भाई इतने टाइम में ये ठीक होगा, और वो ठीक हो जाए तो उसके बाद आप रिटर्न टू प्ले टेस्ट जरूरी है। काइंड ऑफ फिटनेस गो एंड आप ही दोगे तभी वो फील्ड में जा पाएंगे। सो देयर आर रिटर्न टू प्ले टेस्ट, रिटर्न टू प्ले क्राइटेरिया। तो अगर वो फुलफिल करता है, सपोज टिक लिस्ट है 5, तो उसमें 5 टिक लिस्ट उसकी हो गई, तो उसके बाद ही कैन गो टू प्ले विदाउट एनीथिंग। आई गिव देम अ ग्रीन सिग्नल। ऑल्सो आपके वर्क शेड्यूल में जब भी टीम किसी टूर्नामेंट पे है, ट्रैवल कर रही है, तो उसके साथ भी आपको ट्रैवल करना सर, ये जो मैंने बोला था ना, दैट इज द ऑफ फील्ड। ये ऑफ फील्ड था। ऑन फील्ड भी था ये किस्म से कि जब उधर वो कोच करा रहा है तब वो भी ऑन फील्ड ही है, लेकिन जब आपके रिहैब रूम में आया, आपने ट्रीटमेंट दी, दैट इज ऑफ फील्ड। एंड व्हेन यू हैव द बिगर टूर्नामेंट्स, ठीक है, तो उसमें जो काम है दैट इज मेनली ऑन फील्ड। तो उसमें फॉर एग्जांपल टूर्नामेंट है, तो उसमें 4-5 मैचेस है बराबर, उसमें आपको लोड मॉनिटरिंग पे ध्यान देना है। उसमें जो अक्यूट इंजरी है ग्राउंड पे जब मैच चल रहा है तब कुछ होता है, प्रिपेयर रहना है। तो मेनली उधर काम होगा फर्स्ट एड ओनली, उसमें ज्यादा कुछ होगा नहीं। So being a sports PT, you also need to have your CPR training done too. Okay. Cardiopulmonary resuscitation as well as your basic first aid training या फिर basic sports का first aid training, that is very important for you to do as a sports PT. Okay, so पूरा complete work schedule और जो भी job responsibilities है as a sports physiotherapist, ये हमने डिस्कस किया। अब इस डिस्कशन में आपने जैसे बताया कि there are opportunities private as well as public. So public में तो हो गया कि सारे जितने भी states है वहाँ पे मेजोरिटी जो भी बड़े स्पोर्ट्स है, फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट, ये सब डिफरेंट एकेडमीज है उनकी, तो वहां पे एक पब्लिक अपॉर्चुनिटी हो गई, वो जॉब अपॉर्चुनिटी या
देखे हम प्रैक्टिस वाइज, दूसरे प्राइवेट क्लब्स होंगे, तो आप प्राइवेट एज वेल एज पब्लिक, आपने दोनों में काम किया है, राइट? तो आप किस तरह से देखते हो, व्हाट यू सजेस्ट टू न्यू जनरेशन ऑफ फिजियोथेरापिस्ट? देखो, मैं पहले स्टेप्स में बताया, आपने पूछा था स्टेप्स क्या है उधर जाने के लिए, करियर के स्टेप्स, तो वो हम उसके ऊपर। यस सर। सो बेसिकली देखो, जो भी प्राइवेट एकेडमीज है तो उसमें क्या है कि इफ यू हैव डन सम फेलोशिप्स और सर्टिफिकेशन, सो दे कंसीडर इट सम प्राइवेट और लोकल एकेडमीज, वो फंक्शन एट अ सिटी लेवल। कोई टेनिस की हो गई या फिर बास्केटबॉल बैडमिंटन की एकेडमी हो गई, सो इट डिपेंड्स ऑन द इंस्टीट्यूशन इटसेल्फ. If they want to hire someone who is having a bachelor degree or having some fellowships, so they can offer them a job and they can work as physio over there. But if you think about some bigger institutions, if any government organization is there for sports, so for that job a master's degree is essential, and also it values your internships which are being done at any tournaments or anything, or they look after the exposures which you have got during your masters and all, so that is considered on a larger level. Okay, so during your masters you might have also involved in yes, exactly. See, right? Masters is of 2 years, means 24 months. Of the 24 months I was being posted on sports tournaments for around 4 to 5 months. We were being given posting at Khel Mahakumbh, then we were being given posting at Sports Authority of India, SAI. So we got a good exposure from my college, which was SBB College of Physiotherapy. Okay, so good. I mean, so ये एक्सपीरियंस आपको आगे काम आएगा। तो आप कहाँ से MPT कर रहे हो और वहाँ पे कौन-कौन सी एक्सपोजर अपॉर्चुनिटीज है, आपको भेजते हैं? इट इज इम्पोर्टेंट। एंड सी, एक आपको एडवाइस मतलब लोगों को दूंगा कि MPT में मेनली सेल्फ स्टडी ही है। पीपल टीच, बट आफ्टर ऑल MPT इज देयर टू बूस्ट अप योर थिंकिंग प्रोसेस। जब आप मास्टर कर रहे हो फिजियोथेरेपी में, तो आपके सब्जेक्ट के ऊपर आपको यू नीड टू हैव सम सॉर्ट ऑफ सेल्फ स्टडी, एंड वो भी डिपेंड करता है कि आप कौन सी कॉलेज से कर रहे हो, और कॉलेज भी मैटर, अगर इन केस आप उसको मतलब you keep that aside, but you need to think that what postings they are providing in terms of sports. Okay, तो स्पोर्ट्स एकेडमी में पोस्टिंग्स क्या है, वो एक मेजर पार्ट है। मतलब अगर मुझे प्राइवेट एकेडमीज और क्लब में काम करना है तो ऐसा तो मैंडेटरी नहीं है कि मुझे MPT ही चाहिए होगा। इट डिपेंड्स ऑन द प्राइवेट इंस्टीट्यूशन ऑल्सो। बट अगर किसी को इंटरेस्ट है, BPT उन्होंने, वो बैचलर ऑफ फिजियोथेरापी कंप्लीट हो गया है, अब ऑफ कोर्स MPT में कुछ एंट्रेंस एग्जाम वगैरह, एडमिशन प्रोसेस उस तरह से होगा। सपोज किसी स्टूडेंट का वो नहीं हुआ एंट्रेंस एग्जाम, बट स्टिल इफ ही इज इंटरेस्टेड, स्पोर्ट्स करना है, तो एक ही रास्ता है उसके लिए कि he or she needs to find a bigger club or bigger academy जहाँ पे there is one head physio who has done MPT and they can work as an assistant physio who has done bachelor of physiotherapy. They can work as an assistant sports physio. असिस्टेंट स्पोर्ट्स फिजियोथेरापिस्ट के तौर पे काम कर सकते हैं। BPT जिसने किया हो वैसे काम कर सकते हैं। और there are also such fellowships and certificate courses in sports physiotherapy, right? जो मैंने अभी बोला, I am working currently with the Gujarat State Senior Football Team, लेकिन उसके अलावा I am associated with the West Lions Football Academy, which is in Bhavnagar. Okay. So I am working there as the head physio, and I have one assistant being posted over there who works as an assistant physio. Okay, good. So तो वो भी एक opportunity है ही। और अगर हम opportunity नंबर वाइज और कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है देखें, तो ऑल ओवर इंडिया में जितने भी स्टेट्स है, सभी स्टेट में बड़े जितने भी स्पोर्ट्स है, वहां पे उनकी एकेडमी होगी राइट? फ्रॉम द क्रिकेट, टेनिस, डिफरेंट स्पोर्ट्स के डिफरेंट एकेडमी और डिफरेंट स्पोर्ट्स के डिफरेंट एसोसिएशन भी होंगे। यू नीड टू अप्रोच द एसोसिएशंस एज वेल एज एकेडमी, right? And I want to request the students one simple thing, कि instead of spending time on social media unnecessarily, they can upgrade their LinkedIn account जो भी final year internship में है। they can come into the professional world, they can start searching for better options, they can list, they need to start networking and socialize that way, which will be helpful for them in the near future.
Of course, that's very good insight. Yeah. तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन हाँ जो प्राइवेट वर्सेस पब्लिक एक्सपीरियंस, वर्क एक्सपीरियंस एज ए स्पोर्ट्स फिजियोथेरापिस्ट और ओवरऑल अगर फिजियोथेरापी फील्ड के बारे में आप कुछ हाईलाइट करना चाहो. So I would like to see, मैंने सब कर लिया. I have my clinic. I was working as a professor. I worked with a private sports academy. I worked with a government sports academy. I do online teaching. I am an online education counselor regarding physiotherapy. I have done everything. I also do home visits. Good. Yeah. So you are the ideal person to guide the next generation of physiotherapy professionals. क्या so difference ये है सर, प्राइवेट में क्या है कि एवरीथिंग इज यू नो ऑन अ डेफिनिट ऑर्गेनाइजेशनल लेवल कि ये सिस्टम है, ऐसे ऐसे है, इसके अलावा नहीं. पेपर वर्क ज्यादा होता है अगर आपको कुछ भी करना हो. प्राइवेट मींस जॉब भी होगा और प्राइवेट प्रैक्टिस भी. हाँ. सो प्राइवेट प्रैक्टिस आई मीन क्लिनिक. सो क्लिनिक जो है प्राइवेट प्रैक्टिस है, उसमें क्या है कि यू आर द बॉस. यस. You have a team who approaches you and you are the sole authority who manages everything. So क्या एक pressure रहता है at back of your mind कि भाई ऐसा है तो like अभी I am the one, जो भी issues है वो मुझे ही solve करने हैं. I don't have anyone above me. और so responsibility बढ़ जाती है. फिजियोथेरापी नॉलेज के अलावा आपको मैनेजमेंट स्किल्स भी आपको सीखनी पड़ती है या फिर टाइम आपको सिखा देगा. दैट इज द थिंग. और अगर आप एक गवर्नमेंट सेटअप में अगर आप है तो उसमें क्या है, यू हैव समवन अबाउ यू. सो देयर इज अ टीम, जैसे मैंने बोला पूरी स्पोर्ट्स साइंस की टीम है. दे रिपोर्ट्स, फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट में था तो वी रिपोर्ट टू द डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स डेवलपमेंट ऑफिसर. सो वी नो दैट समवन इज अबाउ अस who takes after the responsibility, who after all our is a responsible work too. But we have something assurance that someone is above us who will take care of everything. So at least सारी responsibility आपके ऊपर नहीं है. मतलब है काम की तो है, लेकिन अगर कुछ होता है तो even administration में कोई है. So someone is there who will look after everything. Okay. So अगर किसी को जिन्होंने एमपीटी कंप्लीट कर लिया है या बीपीटी कर लिया है तो जॉब के लिए प्राइवेट सेक्टर में जॉब के लिए क्या कहोगे आप? क्लिनिक वगैरह में. हाँ, या हॉस्पिटल्स है, क्लिनिक्स है, या जैसे प्राइवेट क्लब्स हो गए इन केस ऑफ स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपी. वो तो हमने डिस्कस किया. ये डिस्कस करना चाहता हूँ एज दिस इज अगेन अ कंट्रोवर्शियल टॉपिक. ओके. वी फिजियोथेरापिस्ट बिलीव दैट वी आर अंडरपेड. Okay. It is a national scenario where जो association है उसमें many people are raising voices to do something and all, and they are working in a way that it will be done. I assure that it will be done. Okay. Association means this Indian Physiotherapy Association. Yeah. Okay. See, so I think that it will be done, but somehow there is some discrepancy in the salaries. So मैं क्या suggest करूँगा कि अगर जिसने masters किया हो, ठीक है, और जो भी अकॉर्डिंग टू रूल्स जो है उसको करना चाहिए, या बीपीटी हो या एमपीटी हो, ठीक है, तो उसमें आई वुड सजेस्ट के वर्क पार्ट टाइम एट प्राइवेट क्लिनिक्स और हॉस्पिटल्स. वर्क पार्ट टाइम एंड देन डू समथिंग लाइक other things also which can help you explore. For example, you can also do home visits. You can also provide teachings. You can work in a multiple ways जो connect करता है umbrella जो हमारी फिजियोथेरापी है. तो like एक ही चीज कर रहे हो तो वो फिक्स नहीं है. यू कैन हैव टू हैव मल्टीपल ऑप्शंस जो फिजियोथेरापी के अंडर आते हो. यहाँ सो थिंक वाइजली. एक चीज जस्ट फॉर माय क्यूरियोसिटी, एंड रिसेंटली वी हैव आल्सो ऑन आवर यूट्यूब चैनल वी हैव पोस्टेड वन वीडियो आफ्टर फिजियोथेरापी. व्हाट इफ दैट पर्सन डू एमबीए and focus on medical devices and equipment company who are manufacturing for these fitness and physiotherapy instruments, and what do you visualize? I mean, अगर कोई सेल्स पर्सन उस कंपनी का है या मैनेजर है जिसका फिजियोथेरापी बैकग्राउंड है प्लस एमबीए भी है, सो ही नोज बिजनेस एनालिसिस, मार्केट एंड सेल्स, वो कॉम्बिनेशन how you think about it? I know a lot of people जो ऐसा कर रहे हैं. Okay. मैंने उनसे बात भी की थी.
तो उसमें ऐसा है कि देर आर मैनी डिवाइसेस, क्योंकि हमारे सब्जेक्ट हमारा जो करिकुलम है हाँ उसमें सेकेंड ईयर में हमको इलेक्ट्रोथेरापी पढ़ाया जाता है. हाँ सो उसमें मशीन्स क्या होती हैं, फिजियो में ट्रीटमेंट दो तरीके से है. दैट फर्स्ट इज द इलेक्ट्रोथेरापी, अनदर इज द एक्सरसाइज थेरापी और द मैनुअल थेरापी. ठीक है. ओके, yeah. तो जो मशीनरी का जो अंदर का स्ट्रक्चर है वो हमको पढ़ाया जाता है इलेक्ट्रोथेरापी में. हाँ बराबर. और हमको फर्स्ट ईयर में फिजिक्स भी आता है. बराबर. तो अगर उसके कॉम्बिनेशन में अगर कोई, आपने बोला वैसे एमबीए अगर हेल्थ केयर में या फिर हेल्थ केयर एडमिनिस्ट्रेशन में करता है एनसी, और आई विल रिलेट एवरीथिंग टू स्पोर्ट्स साइंस नाउ. तो अगर स्पोर्ट्स साइंस का जो मशीनरी है, फॉर एग्जांपल आइसोकाइनेटिक डायनेमोमीटर, फोर्स प्लेटफॉर्म बायोफीडबैक, ऐसे कुछ डिवाइसेस जो है, गेट हाँ. लैब है, पोस्चर लैब है, ऐसा कुछ है. हाँ ठीक है. तो उसमें अगर स्किल्स मिल जाए और if you develop something great in this field, then yes, there is money and there you will also have work satisfaction also. yes, because that opportunity opens multinational company who are manufacturing, who are dealing with this equipment, instruments and और MNC के साथ टाई अप होगा तो he हाँ. can also have some ergonomic sessions too. yes, वो MNC कंपनी को भी कंसल्ट कर सकता है. He can become a consultant at these companies Okay. who will look after the health of their employees. क्योंकि जो भी एम्प्लॉय है, अगर किसी कंपनी में 200-300 एम्प्लॉय है तो उनको बैक पेन, नेक हाँ, पेन, वगैरह वो सब होगा ही. तो he can also work as a occupational, consultant, ergonomist और physiotherapist for the same. the same. हाँ ठीक है. मतलब so there is There are a many good options. scope. It's अगर upon आपने- us कि yes. हम हमारी लाइफ से क्या करते हैं, हमारा थिंकिंग होराइजन क्या है, हमको क्या करना है, हमको जो शिप करती है एक के पीछे एक वो करना है, या फिर कुछ हटके करना है और Of हमको course. अपलिफ्ट मतलब करना है. अगर बीपीटी किया है, बिजनेस में, सेल्स में, इन सब चीजों में इंटरेस्ट है, तो MBA is one of the good options. Yes, definitely. Right? Definitely. Definitely. And many Right. people are doing it, and this thing is trending from last 2 or 2.5 years in our field. Oh wow, great. So मेरे बहुत जूनियर्स कर रहे हैं. इनफैक्ट आई हैव सीन मेनी जूनियर्स वर्किंग ग्रेट in this field. Yeah. okay, so now let's come to some recent trend about what do you think about chiropractic medicine? Okay. और अभी जो ट्रेंड में है, अगेन सर एक उसमें थोड़ा बेसिक में समझना चाहेंगे. काफी स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो फर्स्ट टाइम ये सुन रहे होंगे कि कायरोप्रैक्टिक मेडिसिन या उसकी प्रैक्टिस क्या है और वो फिजियोथेरापी से कितना डिफरेंट है, और जो लोग बीपीटी के बाद वो कर रहे हैं तो अगर करना भी है तो कैसे करना है, कैसे नहीं करना है. व्हाट डू यू एडवाइज और व्हाट्स योर देखो अभी क्या है कि सबको खट खट आवाजें करनी है. एवरीवन वांट्स टू बी अ कायरोप्रैक्टर. इट्स ट्रेंडिंग क्योंकि रील्स आ गए हैं सोशल मीडिया पे, वो मेनली उसकी वजह से ज्यादा देख के वो सब एक्साइटेड रहते हैं, द यंग जनरेशन ऑफ फिजियोथेरापिस्ट. सो बेसिकली मैं ये मिथ बस्ट करना चाहता हूँ कि ये चीज है क्या. सो इट इज एन अलाइड साइंस. जैसे फिजियोथेरापी है वैसे कायरोप्रैक्टिस का भी कोर्स है फॉर बिकमिंग अ कायरोप्रैक्टर. वैसे in the western countries there are such courses which are being offered. ठीक है. तो ऐसे 3-4 साल के कोर्सेज रहते हैं. ठीक है. तो वो कोर्स खत्म करने के बाद आपको बैचलर ऑफ कायरोप्रैक्टिस की आपको डिग्री मिलती है. ठीक है. तो अभी क्या सिनेरियो है कि हमारे देश में आफ्टर कंप्लीटिंग बीपीटी many people are doing 4 दिन का, 5 दिन का, 10 दिन का कायरोप्रैक्टर का कोर्स. तो उसमें जो वेस्टर्न कंट्री में 3 साल बंदा पढ़ता है वह वो आपको 4-10 दिन में कैसे सिखा सकता है कोई. नॉट पॉसिबल. आई मीन यू कैन नॉट बी एक्सपर्ट ऑफ दैट. नहीं, अगर आपको ये चीज अच्छी लगती है, ठीक है, और ऐसे भी केसेस हैं जहाँ पे पीपल आर नॉट गेटिंग द डिजायर्ड आउटकम आफ्टर हैविंग दिस थेरापी आल्सो. ओके, दे वर्क बेसिकली ऑन द माल अलाइनमेंट ऑफ योर बॉडी. They just fix it. They just fix the alignment, the body parts which are misaligned. Okay. That is the crux of this treatment. Okay. So अगर आपको उसमें genuinely interest है तो भाई आप वो उसका बैचलर ही करो ना. 4-10 दिन का क्यों कोर्स करते हो? You should have a deep knowledge about that. Deep knowledge, yeah. Yeah. ठीक है. तो हमको जो पढ़ाया है 4 साल में ठीक है, आप अगर वो फॉलो करके आप वो ही प्रैक्टिस करोगे सो यू कैन ऑल्सो रीच एट सर्टेन लेवल. ये सब करने से भी दैट एड्स नो वैल्यू. ओके. सो इंटरेस्ट है तो जाओ करो,
बाकी I personally don't believe. Okay, I again अभी said कुछ it's a इतना- controversial topic. क्योंकि Yeah. ये इस कायरोप्रैक्टिक मेडिसिन के ऊपर अभी कोई रेगुलेशन वगैरह कुछ है नहीं, होने It is चाहिए, not clear होने in चाहिए. India. So that is also, I think, government agency should नहीं, think about अभी it होते कि अभी हैं, कुछ अब है होते तो। हैं. See, for example, we have a Gujarat State Council of Physiotherapy, which is working tremendously for the upliftment of a profession. और they are working के भाई अगर कुछ जगह पे ऐसी कोई माल ट्रीटमेंट होती है तो they have certain cell जहाँ पे इंस्पेक्टर्स जाते हैं और वहाँ पे क्लिनिक को वो शट डाउन भी बहुत कराए हैं उन्होंने. So we have a council who looks after such malpractices. Okay, so there is some regulation is there. So Yeah. so we should be responsible for before accepting such kind of. Last, I mean, MPT students के लिए क्या कुछ एडवाइस आप जो देना एमपीटी कर रहे हैं, पास आउट अभी कर रहे हैं, देखो अभी एमपीटी जो कर रहे हैं उनके लिए एडवाइस मैं ये देना चाहूंगा कि 730 दिन निकालने हैं, 365 इंटू 2. उसमें से जो आपका इलेक्टिव है तो मेक श्योर आपको इलेक्टिव पोस्टिंग मिले, आपको इलेक्टिव के पेशेंट्स मिले. एज सुन एज पॉसिबल डू योर पेपर, पोस्ट द रिसर्च प्रेजेंटेशन, मेक श्योर यू डू योर थीसिस ऑन योर टाइम. एंड जो भी कॉलेज से आपको मिलता है नॉलेज, गेन इट. और अगर आपका गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन है तो डू योर हैंड्स ऑन प्रैक्टिस इनफ, क्योंकि अगर गवर्नमेंट से करते हो तो क्या है कि आपको हैंड्स ऑन पेशेंट आपको ज्यादा मिल जाएंगे कंपैरेटिवली टू प्राइवेट कॉलेजेस. और अगर आप प्राइवेट कॉलेज में हो तो मेक श्योर इन योर फ्री टाइम या फिर जब आप पेशेंट नहीं कर रहे हो बराबर, तब आप रिसर्च में ज्यादा ध्यान दें and try to get as much as knowledge from your faculties. Okay, this is good. एक क्वेश्चन हमारे जो ऑफ कैमरा डिस्कशन जो हो रहा था उसमें यू हैव सजेस्टेड कि रिसेंट ट्रेंड और डिमांड भी है न्यू स्पेशलिटी इन फिजियोथेरापी विच यू आर टॉकिंग अबाउट, yes दैट ट्रांसप्लांट फिजियोथेरापी, उसके बारे में कुछ एलोबरेट कीजिए. बेसिक और नीड क्या है और क्या वो फील्ड में. सी जो मास्टर्स इंटरकनेक्टेड है उसके साथ, दैट इज द कार्डियोपल्मोनरी फिजियोथेरापी. ठीक है, दिस थेरापिस्ट वर्क्स इन बिगर हॉस्पिटल. ठीक है, जहाँ पे किसी पेशेंट को कार्डियो इश्यू हो, पल्मो इश्यू हो, दैट थेरापिस्ट प्रोवाइड द चेस्ट पीटी. ठीक है, तो वैसे ही जो भी ट्रांसप्लांट साइंसेस है दैट इज अ न्यू थिंग. ओके, सो उसके लिए भी देयर इज डेजिग्नेटेड न्यू कोर्सेज विच आर देयर जिसमें मास्टर्स इज बीइंग run on this particular topic which is of transplant sciences, and it is trending among the students who are getting fascinated by this course and they are opting for this course. Okay. And who can generally improve the quality of life of the patients who are being operated for the same. So there is a designated organ transplant surgery patients है, जैसे किडनी ट्रांसप्लांट, लीवर ट्रांसप्लांट, हार्ट ट्रांसप्लांट पेशेंट्स जो तो उसमें आपका बॉडी कैसे अडेप्ट करता है वो ट्रांसप्लांट ऑर्गन से, उसकी क्या फिजियोथेरापी नीड है वो पूरा पढ़ाया जाता है. ओके, सो दैट इज अपकमिंग और राइट नाउ ट्रेंडिंग वी कैन से, रिसेंटली बिकॉज बहुत सारी ऐसी जो टर्शियरी केयर सेंटर्स है अब वहां पे ट्रांसप्लांट सेंटर्स है, किडनी ट्रांसप्लांट, लीवर ट्रांसप्लांट, सेपरेट डिपार्टमेंट्स है. तो ऑफकोर्स उन डिपार्टमेंट को ये स्पेशलिस्ट की जरूरत पड़ेगी ही, और अभी शायद इतने स्पेशलिस्ट नहीं होंगे तो वो एग्जिस्टिंग फिजियोथेरापिस्ट बाकी बैकग्राउंड से कर रहे होंगे. अभी क्या चल रहा है, मतलब व्हाट्स योर ऑब्जर्वेशन? सपोज अभी किसी हॉस्पिटल में ट्रांसप्लांट डिपार्टमेंट होगा, राइट, तो वहां पे आई थिंक इसको ये जो ट्रांसप्लांट फिजियोथेरापी है वो 1 या 2 साल से स्टार्ट हुआ है, कितना इतना टाइम हुआ होगा? पोस्ट कोविड ही हुआ है मोस्टली. पोस्ट कोविड हुआ इन अहमदाबाद आई कैन से. सो तब तक तो बाकी ही चल रहा है, पर एटलीस्ट अगर ये स्पेशलिस्ट डॉक्टर, स्पेशलिस्ट फिजियोथेरापिस्ट अवेलेबल है तो दे विल गेट अ प्रायोरिटी. यस, दे विल गेट अ प्रायोरिटी इन बिगर चेन ऑफ हॉस्पिटल्स which can be pan country or pan और एटलीस्ट ग्लोबली सिटी में भी है. मोस्टली
ट्रांसप्लांट फिजियोथेरापिस्ट विल बी वर्किंग इन अ टर्शियरी केयर सेंटर, 200-300 बेड हाँ जी, हॉस्पिटल, हाँ हाँ जहाँ पे ऑर्गन ट्रांसप्लांट प्रोग्राम है, और उसी ऑर्गन ट्रांसप्लांट टीम में उनका वर्क रहेगा। आगे के सालों में उनकी डिमांड और बढ़ेगी। यस, so I think I hope that viewers like this podcast and they have learned something about sports physiotherapy, कैसे प्रैक्टिस और फ्यूचर में इसमें क्या करियर अपॉर्चुनिटीज है। तो थैंक यू वेरी मच डॉक्टर श्रीनाथ, और विल होप that in future also we will be doing such kind of new things in a practice. बहुत मजा आया आपसे बात करने। Same here, sir. Likewise. Thank you.